Hello everyone, Vinita this side. Welcome back to our YouTube channel. Nagin Best Digital Learning. The Adventures of Toto is a chapter in the NCRT Class 9 English textbook, which is a part of a short story collection by Ruskin Bond. The story is about a pet monkey named Toto, which is owned by the narrator's grandfather. In this article, we are going to discuss about the chapter Adventures of Toto. Actually, students, in the story, the grandfather finds Toto at the Tanga driver's stable and is instantly taken with him. He purchases Toto for 5 rupees without anyone else's knowledge. Toto is an extraordinarily mischievous monkey with a knack for getting into trouble. Actually, his sharp teeth and quick movements create several mishaps, but his antics are highly entertaining. When the grandfather brings Toto home, he initially keeps him in a stable with a donkey. Toto, however, is not well received by the donkey and he tries to yank the donkey's ears. After this episode, Toto is shifted to a cage with a pet tortoise, but the monkey's mischief continues there as well. Subsequently, Toto is moved to the narrator's room, causing further chores. Toto tears up the narrator's school blazer and disrupts his sleep. The grandfather decides to put Toto in a large cage in the servants' quarters, but this leads to more havoc. Toto's behavior leads to a lot of additional expenditure, including a damaged cage, a torn blazer, and a wet fee. One winter day, the family sees Toto trying to take a bath in the kitchen kettle, nearly scalding himself. His ability to imitate human behavior provides comic relief despite the dangers his actions pose. In the end, the narrator's grandfather realizes that Toto is not fit to be a pet and is causing more harm than joy. He decides to sell Toto back to the Tanga driver for 3 rupees, suffering a lot. Despite the numerous troubles Toto causes, the narrator recalls these adventures fondly, symbolizing the cherished memories we often associate with childhood and pets. The Adventures of Toto is a charming tale teaching us about the unpredictability of wild animals as pets and the importance of freedom for all living creatures. The story, told with humor and affection, vividly portrays the antics of a pet monkey and its interactions with the narrator's family. I hope something is understandable by you. So, I just want to tell one thing. The family was so fed up with the activities that the grandfather decided to return Toto back. Hence, the moral of the story is one must maintain courtesy in order to maintain each other, in order to live with each other. Humans prefer pets which can mold according to them. And why Toto is called Adventures?
Why the chapter is named as The Adventure of Toto? Actually, he even does not allow the other pets to grandfather live and sleep peacefully. He annoys the grandmother by breaking plates and eating pulao. He is considered as a dog by the ticket collector on the journey to Saharanpur. Thus, he is very adventurous monkey. So that's why the name of the chapter is The Adventures of Toto. I hope you will understand because it describes the title of the story, The Adventures of Toto. The title of the story justifies as it describes the exciting journey of Toto, who overcomes many obstacles and challenges. Toto's adventures. I hope you will understand something about this. Now, we are going to start reading properly from our book. Okay. Have you ever had a baby monkey as a pet? क्या आपने कभी भी एक पेट किसको रखा? मंकी को, बेबी मंकी को. कैन यू इमेजिन कि एक मंकी एज अ पेट? हैव यू हियर्ड एनीवेयर? कहीं सुना है आपने कि बेबी मंकी को एज अ पेट रखा गया? टोटो इज अ बेबी मंकी. तो यहाँ पर जो टोटो है ना, वो बेबी मंकी है, मंकी का एक छोटा सा बच्चा है. लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिसचीव्स और docile. नाउ इफ वी जस्ट वांट टू नो कि अब उसमें हमें इस स्टोरी में ये पढ़ना है कि वो मिसचीवर्स है या docile है. मीन्स कि वो शरारती है या फिर वो शांत है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड what the question I'm asking. So nextly, if we are just continue with the chapter, grandfather bought Toto from a tanga driver for the sum of 5 rupees. अब यहाँ बात क्या आ रही है कि जो ग्रैंडफादर हैं, जो दादाजी हैं, उन्होंने टोटो को एक टांगे वाले से 5 रुपीज में परचेज किया है. कितने रुपीज में? 5 रुपीज में. नाउ द टांगा ड्राइवर टांगे वाला जो ड्राइवर है used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. फीडेड ट्रॉफ का मतलब होता है जो एक पात्र होता है जिसमें हम एक ऐसी कंटेनर टाइप होता है जिसमें हम पशुओं का चारा रखते हैं. And the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. दादाजी ने टोटो को एक तांगे वाले से 5 रुपए में खरीदा था. वो तांगे वाला था ना जो वो लाल बंदर को एक ऐसे कंटेनर में रखता था जिसमें हम पशुओं का मोस्टली चारा रखते हैं, फीडिंग ट्रॉफ रखते हैं, मतलब खाने पीने की चीजें जो वो खाते हैं. एंड द मंकी उसको उस फीडिंग ट्रॉफ से क्या करता था? बांध देता था, बांध देता था. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट. और बंदर वहां पर इतना विचित्र लगता था, इतना स्ट्रेंज लगता था कि दैट द ग्रैंडफादर डिसाइडेड कि ग्रैंडफादर ने डिसाइड कर लिया था दैट ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. कि वो उस लिटिल फेलो को, उस छोटे सी जान को, उस छोटे से पशु को अपने चिड़ियाघर में, एक छोटा सा प्राइवेट जू था उनका, वहां पे उसको ऐड करेंगे, उसको उसमें शामिल करने का उन्होंने डिसीजन ले लिया. जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो वहां पर आउट ऑफ प्लेस देयर, कि वो बहुत ही विचित्र लगता था. तो उनको ये था कि मुझे इसको अपने जू में रखना है क्योंकि जू की जो
आदत होती है ना लोगों को, वो इसलिए होती है ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के एनिमल्स को अपने जू में रख सकें। तो उनको वो जो टोटो था ना, वो इतना स्ट्रेंज लगा कि उन्होंने डिसाइड कर लिया दैट ही वुड ऐड द लिटिल फेलो, कि वो छोटे सी जान को अपने प्राइवेट जू में इंक्लूड करेंगे, ऐड करेंगे। द टोटो was a pretty monkey. टोटो एक बहुत ही सुंदर मंकी था। Actually, his bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. उसकी जो आंखें थी, उसकी गहरी भवों के नीचे शरारत से चमकती थी। उसकी आईब्रोज के नीचे ना, उसकी जो आंखें थी वो अलग से ही चमकती थी। एंड हिज टीथ, और उसके जो दांत थे, जब भी वो मुस्कुराता था तो जो उसके दांत थे ना, इन अ स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। उसको देखकर एंग्लो इंडियन अथेड़ उम्र की जो स्त्रियां थी ना, वो तो डर के मारे जान निकल जाती थी उनकी, ऐसे हंसता था। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, लेकिन उसके हाथ सूखे सूखे से लगते थे। Though they had been pickled in the sun for many years. अब क्या था, उसके हाथ बहुत सूखे सूखे लगते थे कि जैसे वर्षों तक धूप में ही सुखा रखे हों। सूरज की रोशनी में काफी साल तक उसको पिकल किया गया, सुखाया गया, ऐसे इतने ड्राई थे उसके हैंड्स। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक। फिर भी उसकी जो उंगलियां थी ना, मतलब हाथ इतने ड्राई होने के बाद, उसकी जो फिंगर्स थी वो बहुत क्विक थी और विक्ड थी, मतलब बहुत शरारती और बहुत फुर्तीली थी। एंड हिज टेल, और उसकी जो टेल थी, पूंछ थी, while adding to his good looks, वो उसके सुंदरता को और ज्यादा इंक्रीज कर देती थी, बढ़ा देती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल would add to anyone's good look. ग्रैंडफादर का ये मानना था, उनके विचार में, पूंछ से सभी की खूबसूरती ना बढ़ जाती है। ग्रैंडफादर का ऐसा मानना था कि पूंछ से ना किसी की पर्सनालिटी, किसी एनिमल की पर्सनालिटी में चार चांद लग जाते हैं। और यही टोटो के लिए था कि उसकी पूंछ ऐसी लगती थी। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। उसके तीसरे हाथ का भी काम करती थी पूंछ। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच। वो उसका यूज करता था शाखाओं पे हैंग, लटकने पे। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी delicacy that might be out of reach of his hands. अब उस पूंछ का यूज शाखाओं पर लटकने के लिए करता था। एंड इट वाज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी delicacy that might be reach of his hands। जहां उसके हाथ नहीं पहुंच सकते थे ना, वहां से वो अपनी पूंछ से कुछ भी चीज जो है वो स्कूपिंग, मतलब कुछ भी चीज को लेने में, खींचने में, या उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में, उस चीज को अपनी तरफ लाने में समर्थ था, सिर्फ अपनी पूंछ से। मतलब जो काम उसके हाथ नहीं कर पाते थे ना, मतलब जहां तक उसके हाथ भी नहीं पहुंच पाते थे ना, वहां पे उसकी पूंछ उसका साथ देती थी। एंड इट वाज वेरी स्ट्रेंज। सो इफ वी जस्ट वांट टू टेल समथिंग, आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट टोटो। So you can add all these lines. His bright eyes sparkled with mischief, beneath deep set eyebrows, teeth were very displayed in a smile, hands looked dried up, but still his fingers were quick and weak. His tail
while adding to his good looks. Next, grandfather always fused, fused when grandfather brought home some new bird or animal. दादी माँ हमेशा जो दादी जी थी, जब भी दादाजी कोई नया पक्षी या नया पशु लेकर आते थे, तो दादी हमेशा बहुत हंगामा करती थी. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret. तो इसलिए ये डिसाइड किया गया कि अब दादी तो बहुत हंगामा करती है कोई भी नया पशु या पक्षी ले आए तो, इसलिए इट वाज डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया that Toto's presence should be kept secret from her until she was in a particularly good mood. कि जब तक दादी बहुत अच्छे मूड में नहीं होगी ना, तब तक टोटो की जो प्रेजेंस है ना, उसको उनसे छुपा कर रखा जाएगा. टोटो की प्रेजेंस तब तक उनके सामने नहीं आएगी जब तक वो एक अच्छे मूड में नहीं होते. Grandfather and I put him away in a little closed opening into my bedroom wall where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. अब ग्रैंडफादर, अब ये तो डिसाइड हो गया कि दादी को नहीं बताना. Grandfather and I put him away in a little closest opening into the bedroom wall. अब हुआ क्या कि दादाजी और मैंने अपने बेडरूम की दीवार में एक छोटी सी खुलने वाली कोठरी में उसको बांध दिया. वेयर ही वाज टाइड, जहां पे वो सुरक्षित बांध दिया गया वहां पे उसको. सो वी थॉट, या एस हमने सोचा, टू पेग अ फास्टन इनटू द वॉल, कि उसे दीवार में गड़ी हुई खूंटी से बांध दिया जाए. अब ऐसे कुछ प्लान कर रहे थे कि छुपा के रखना है तो क्या करें. अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, when grandmother and I came back to release Toto. अब कुछ घंटों के बाद, उसको बांध रखा था बहुत देर से. अब कुछ घंटों के बाद जब दादाजी टोटो को खोलने के लिए आए, मैं और दादाजी जब उसको छुड़ाने के लिए, उसको वहां से रिलीज करने के लिए आए, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as nagged brick and plaster. जब हम वापस आए तो हमने देखा कि उस दीवार पर जो सजावटी कागज लगा हुआ था, उसको फाड़ कर दीवार के ईंट और प्लस्तर दिख रहा है बस, बाकी सब कुछ उतार दिया. उसको क्या कर दिया, जो कवर था ना, अब उसको नैग्ड कर दिया, नंगा कर दिया, और वो सिर्फ अब ईंटें और प्लास्टर दिख रहा है. The peg in the wall had been wrenched from its socket. खूंटी को जो छेद था ना, उससे उखाड़ दिया था. एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरा जो स्कूल का ब्लेजर था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहां पर टंगा हुआ था, वॉज इन श्रिड्स, उसके चिथड़े उड़े हुए थे. आई वंडर्ड, मैं बहुत हैरान हुआ, बट ग्रैंड मदर वुड से, कि अब दादी माँ को क्या कहूंगा, अब पता नहीं दादी माँ क्या कहेगी. बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, अब ग्रैंड फादर जो थे उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई. ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, वो टोटो की परफॉर्मेंस को देख कर ना बहुत खुश दिखाई दे रहे थे. और वो बिल्कुल भी वरिड नहीं थे इस बात को लेकर, वो तो बल्कि उसकी परफॉर्मेंस को देखकर खुश हो रहे थे. ही इज क्लेवर, वो बहुत चालाक है. अब वो उसकी एडवेंचर्स को देखकर बता रहे हैं कि वो बहुत चालाक है, दादाजी ने कहा. गिवन टाइम,
I am sure he would he could have tied the torn pieces of your blazer into the rope. Given time, वो बहुत चालाक है, दादाजी ने कहा। गिवन टाइम, समय मिलता, आई एम श्योर ही वुड हैव टाइड द torn pieces of the blazer into the rope. अगर इसको थोड़ा सा टाइम और मिलता ना तो मुझे विश्वास है कि वो तुम्हारे ब्लेजर के फटे हुए टुकड़ों को बांधकर एक रॉप बना लेता, रस्सी बना लेता, एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और खिड़की के रास्ते से बचकर भी निकल जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस, उसकी जो प्रेजेंस थी इन द हाउस, स्टिल अ सीक्रेट, अभी तक उसका घर में होना बिल्कुल सीक्रेट था, किसी को भी नहीं पता अभी। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, pair of rabbits, tame squirrel. अब कौन कौन थे वहां पर? टॉर्टवाइज था, रैबिट्स थे और स्क्वल थी, एंड माई पेट गॉट, अब वहां पे गॉट भी थी। अब क्या हुआ, अब उसको टोटो को एक बड़े पिंजरे में नौकरों वाले कमरे में ट्रांसफर कर दिया, जहां पर दादाजी की और भी बहुत सारे पेट्स रहते थे, जैसे टॉर्टवाइज था, कछुआ, खरगोश का जोड़ा था, टैम स्क्वल थी, पालतू गिलहरी, और उसकी एक प्यारी सी बकरी थी। बट द मंकी would not allow any of his companions to sleep at night. लेकिन जो मंकी था ना, would not allow, उसने अलाउ नहीं किया एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट। लेकिन बंदर ने किसी भी साथी को रात रात को सोने नहीं दिया, वो किसी को रात को सोने ही नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। अब दादाजी ने हु हैड टू टेक देहरादून नेक्स्ट डे, जिनको अगले दिन देहरादून जाना था और सहारनपुर से अपनी पेंशन लानी थी, पेंशन प्राप्त करनी थी। अब उन्होंने सोचा, उन्होंने डिसाइड किया टू टेक हिम अलोंग, कि वो उसको अपने साथ ले जाएंगे। अब नाउ अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, दुर्भाग्यवश, आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, मैं दादाजी के साथ उस ट्रिप पे नहीं जा सका, वो नहीं गया। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उन्होंने बाद में मुझे इसके बारे में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवस, एक बहुत बड़ा ब्लैक कैनवस किट थी, बिग ब्लैक कैनवस किट, टोटो के लिए कपड़े का काले रंग की एक थैला जो है वो बनवाया गया। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, इसके नीचे बहुत सारा भूसा रख दिया, स्ट्रॉ रख दिया बॉटम में बैग के। बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड, और उसका नया निवास स्थान बना दिया, मतलब उसकी एक रहने की जगह बना दी। When the bag was closed, जब उस बैग को बंद किया गया, there was no escape, जब उस बैग को बंद किया गया तो वहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था, no space. Toto could not get his hands through the opening. Toto could not get his hands through the opening. जो टोटो था ना, could not get his hands, खुलने वाली जगह से टोटो अपने हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था, कुछ भी नहीं था उसमें। And the canvas was too strong for him to bite his way through. और वो जो थैला था ना, वो बैग था, वो इतना मजबूत था ना कि वो उसको काट भी नहीं सकता था, क्योंकि वो कैनवस इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना मजबूत था कि वो उसको काट भी नहीं सकता था। बट वाइल ग्रैंडफादर was producing his ticket at the railway, अब हुआ क्या, but his efforts to get out only had to effect। अब एक्चुअल में देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो, आई विल टेल यू कि अब जो ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, उन्होंने वो कोशिश की, उसको बहुत स्ट्रांगली बैग में रखा,
उसके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन बंदर को बैग से बाहर आने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ी। उसने बहुत एफर्ट्स लगाए टू गेट आउट, had the effort of making bag roll about on the floor and occasionally jump into the air. बंदर को बैग से बाहर आने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ी और वो फर्श पर बैग को बार बार उलट पुलट करता रहा, और जैसे ही उसको मौका मिला उसने हवा में कूदता हुआ। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on Dehradun railway station. देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक प्रदर्शन सा, एक एग्जीबिशन सी लग गई, जिसे बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ सभी भीड़ वाले देखने के लिए इकट्ठे हो गए। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। सहारनपुर तक टोटो थैले में ही बंद रहा। Grandfather was producing his ticket at the railway turn slit. Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. अब हुआ क्या? वो बंद तो था सहारनपुर तक तो थैले में, लेकिन जब दादाजी रेलवे काउंटर पे टिकट दिखा रहे थे तो टोटो ने अचानक थैले में से अपना सिर बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर जो था ना उसको बहुत ही मतलब स्माइल, मतलब दांत दिखाने लग गया चौड़े चौड़े। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक। अब हुआ क्या? वो बेचारा आदमी वो बहुत ज्यादा टेकन अबैक, बहुत ज्यादा हैरान हो गया कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। वो बहुत हैरान था कि ये मेरे साथ हुआ क्या। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन उसने बहुत दिमाग लगाया, एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस। अब हुआ क्या कि वो हैरान तो बहुत रह गया, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मतलब उसने प्रत्युम्नति से दादाजी की झंझलाहट बढ़ाने के लिए उसने कहा, गुस्सा बढ़ाने के लिए उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू। तुम्हारे पास एक कुत्ता है। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। अगर आपके पास डॉग भी है ना तो आपको इसका तो अलग से चार्ज देना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। व्यर्थ में दादाजी ने टोटो को थैले से बाहर ही निकाला। एंड इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग। और व्यर्थ ही में वो ये सिद्ध करने की कोशिश करने लगा कि बंदर कुत्ते या एक बराबर नहीं होते। उसको दिखाने लग गया कि आप इसको डॉग कह रहे हो, लेकिन ये डॉग नहीं है, एक मंकी है। डिफरेंस होता है मंकी और डॉग में। और इवन एज अ क्वाड्रिप्ट, वो एक बराबर नहीं होते। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय अ टिकट कलेक्टर। टोटो को दिखाया गया कि वो कुत्ते के रूप में, जो उसको बता रहा था ना कि वो कुत्ता नहीं है, टिकट चेकर द्वारा किया गया कि वो टोटो डॉग नहीं है। सो 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज ऑफ हिज फेयर। उसको 3 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़े उसके किराए के लिए। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक। अब हुआ क्या कि जो ग्रैंडफादर थे ना, जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक, टोटो को दादाजी ने पूर्ण रूप से स्वीकार तो कर लिया था, मतलब एक्सेप्ट तो उसको कर लिया था। took from his pocket our pet tortoise and said, उसे क्या था यहाँ पर कि ग्रैंडफादर जस्ट गेट हिज ऑन बैक। अब यहाँ पे उसने 3 रुपीज दे दिए उसके लिए। अब दादाजी ने अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए जेब में से अपना पालतू कछुआ भी निकाला और उसको कहा दैट व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। कि मुझे हर किसी के लिए अगर पे करना है तो मैं इस बताओ कि इस एनिमल के लिए कितना पे करूं। द टिकट कलेक्टर looked closely at the tortoise, prodded it with her forefinger,
gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." टिकट कलेक्टर ने कहा, कछुए को बहुत पास से देखा और अपनी फोर फिंगर्स उंगली से उसे दबाया और दादाजी को खुश करने के लिए, उसको स्माइल देने के लिए कहा कि इसका कोई किराया नहीं है क्योंकि ये एनिमल डॉग नहीं है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड टिल हियर। In next video we will continue with the next concept. Till then, thank you. Have a nice day.